میں چونکہ اس وقت مرید کے میں ہوں، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہاں حالات کیا ہیں جہاں پر انڈیا نے حملہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ ہیلتھ ایجوکیشن کمپلیکس مرید کے لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل کمپلیکس مرید کے، یہاں پر انڈیا نے اٹیک کیا ہے۔ سول آبادی میں یہ ہیلتھ کمپلیکس ہے جہاں پر اٹیک کیا ہے، اس کے اندر مسجد تھی جس پر جو ہے وہ بھارت نے اٹیک کیا ہے۔ آپ یہاں پر حوصلے اب لوگوں کے تھوڑے سے میں آپ کو بتاؤں حوصلے کس طرح لوگوں کے بلند ہے کہ ایک شہری ہے وہ اپنے کم سن بچے کو پاک آرمی کی یونیفارم کمانڈو یونیفارم پہنا کر یہاں پر لایا ہے اور یہ کہہ کر لایا کہ ہم بھارت کے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پہلے ہم اس بچے سے بات کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہتا ہے، کیوں اس نے یونیفارم پہنی۔ جی بیٹا بتاؤ، یہ آپ نے یونیفارم کیوں پہنی ہے؟ ہم بھارتی سے لڑنے آئے ہیں، اس کو بتانے آئے ہیں کہ ابھی بھی ہم زندہ ہیں۔ تو آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو، کس طرح لڑو گے؟ بس لڑنے کا سب کا جذبہ ہوتا ہے، میرا بھی وہی جذبہ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہر بندے کا دل کرتا تو میں بھی ہندوستان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا والد میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بھائیا نے بتایا اب چھوٹے سے بچہ یونیفارم پہن کے آیا تو کیا جذبہ ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جذبہ یہی ہے کہ ہم بھارت کو جب واضح دو ٹوک پیغام دے رہے ہیں۔ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے جنرل جو ہے عاصم منیر صاحب، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو، آؤ نا ہمارے ساتھ آؤ، ہم تو سامنے کھڑے ہیں تمہارے، اور یہ تم موتر گاہ کا پینے والے اور ہمارے ساتھ آتے ہو، ہم تو دودھ پینے والے ہیں۔ جی یہ عام شہری تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا بچہ ساتھ لایا ہے بھارت سے لڑنے کے لیے اور کمانڈو یونیفارم اس نے پہنی ہوئی ہے۔ اور شہری بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے گا، آپ یہاں سے صبح سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر خوف کسی قسم کا؟ آپ ظاہر رات سے بھی یہیں پہ ہوں گے، آپ ظاہر آپ بتا رہے تھے، کوئی ڈر خوف ذہن میں کسی قسم کا؟ ڈر خوف ہے ہی کوئی نہیں جناب، آپ دیکھ رہے میری آنکھوں پہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ ہم تو کل رات کے انتظار کر رہے ہیں یار۔ اصل میں جو یہ انہوں نے رات کو کارروائی کی نا یہاں پہ، یہ ایک بزدلی کا مظاہرہ تھا۔ اگر انہوں نے اوپن فائٹ کرنی ہے تو ہمارے جوان حاضر ہیں، ہمارے جوان جو بارڈرز پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، بحریہ کے ہیں، ہوائی ہے، سارے معاملات ہیں، بارڈرز پہ ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں فائٹ کرتے؟ شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ بچہ دیکھیں آپ، جس بچے کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے، میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، تو یہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئے۔ بچے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ یہاں پر انہوں نے کل رات جو بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ عوام کو ڈرا دیں گے۔ سیم اسی جگہ پر، اسی مسجد کے سامنے، اگر یہ اللہ کے گھر کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس گھر کے سامنے دیکھیں کتنے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں، کتنے کلمہ گو موجود ہیں۔ تو پھر یار ہماری آرمی کو سلیوٹ ہے، ہمارے اداروں کو سلیوٹ ہے، جنہوں نے ان کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، جنہوں نے ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا، اور ہمارا مذہب اسلام تو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ رات کو بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس کی بزدلی کے باوجود میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عوام میں کتنا جوش ہے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! اگر آپ کو فوج نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کی ضرورت ہے لڑنے کے لیے، تو آپ آ جائیں گے؟ بھائی میں بھی آؤں گا، میرا 1.5 سال کا بچہ بھی آئے گا انشاءاللہ، میرا 1.5 سال کا بچہ بھی آئے گا، اور وہ ایک گولی میں سمجھتا ہوں جو بھارتی ضائع ہوگی وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہوگی۔ وہ مسلمانوں پر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، برما ہو، فلسطین ہو، کشمیر، سیریا، شام، لیبیا، جہاں پر بھی، وہ میرے بچہ بھی 1.5 سال کا حاضر ہے۔ میں تو بڑی دور کی بات ہوں۔ جی کچھ اور لوگ بھی ہیں چونکہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، سارے لوگ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، آپ نے ہاتھ میں پھول پکڑے ہیں، یہ کس لیے؟ اور ہم اپنے فوجی بھائیوں پر، رینجر پر پھول پھینکنے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تو یہ پھول ان کے پھینکنے آئے ہیں، صحافیوں پر بھی پھینکنے آئے ہیں۔ یہ رات 1-2 بجے کے ادھر کھڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کے بھی اوپر پھینکنے آئے ہیں، ان کے بھی اوپر پھینکنے آئے ہیں۔ آج یہ بزرگ بھی ہیں، جی ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بزرگوں یہ بتائیے گا، آپ یہ عمر تو نہیں ہے آپ کی لڑنے کی، تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے قوم کے جذبات کو مہمیز لگانے کے لیے، قوم کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے، قوم کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ ایک بت پرست قوم نے توحید پرستوں کو پھر للکار دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، محافظین پاکستان زندہ باد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زندہ باد، جنہوں نے پاکستان کے حصار کو مضبوط سے مضبوط
तर कर दिया है। अगर पाक फौज को आपकी ज़रूरत पड़ी कि आप लड़ने के लिए आप या आपके जवान आए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम जिंदगी का आखिरी कतरा तक अपने वतन की हिफाजत के लिए बहा देंगे और पाक फौज के साथ खड़े। पाकिस्तान जी। अच्छा बेटा, आप क्या कहोगे, क्या कहना चाहते हो? पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज नारा तकबीर। ये देखें रियाज, जिस तरह से बच्चा बूढ़ा जवान सब पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, बल्कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई करके उसने हौसले मजीद बुलंद कर दिए हैं। हमारा तो सिपा सालार भी फ्रंट लाइन पे मौजूद है, लीड कर रहा है फ्रंट से। इनका तो सिपा सालार भी छुपा हुआ बैठा है और उनके तो चौकियां छोड़ के भागते हैं। हमारी तो आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है और भरपूर जवाब दे रही है भारत को। जी बिल्कुल, आपने सुन लिया, आपने देख भी लिया है। यहाँ तक एक कम उम्र बच्चा जो है वो उसका आपने देख लिया है, वो क्या कह रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो एक ही उसका जज्बा ये है कि वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आया है और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आया है। और देखें, वो कमांडो यूनिफॉर्म में आया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, जवानों में, सब में एक ही जज्बा है कि वो हिंदुस्तान को नाको चने चबवा देंगे, लेकिन अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। हमारी पाक फ़ौज जिस तरह अलर्ट है, उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे क्या, हम क्या, हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पे अलर्ट हैं। ज़रा देखो आगे होता है क्या। अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो तुमने अपनी कोशिश कर ली है कि पाकिस्तान पर अटैक करने की, और वो भी सिविल आबादियों पर और इबादत गाहों पर, मस्जिदों पर। तो हम तो कलमा गो हैं, हम किसी की इबादत गाह पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी सिविल जो है लोग उन पर हमला नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि हमला होता क्या है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमला होता क्या है। अभी तो 5 तैयारे गिरे हैं, अभी आपका ये नुकसान कुछ नहीं है, अभी तो आपका नुकसान होना है, जो आपको याद रहेगा। और फिर आप कहते रहेंगे कि हमने गलती की पाकिस्तान पर हमला करने की, हमने पाकिस्तान की सिविल आबादी पर हमला करके गलती की, हम डर रहे थे कि पाक फ़ौज पर हमला किया तो उसका बड़ा भरपूर जवाब होगा। हम सिविल आबादी पर हमला करते हैं, हिंदुस्तान की ये सोच थी कि शायद वो डर जाएंगे, तो ये डर यहाँ नहीं है भाई। यहाँ मौत के जो है वो सीनों पर मौत को लगाए यहाँ लोग घूम रहे हैं। आप मौत से इनको डराने आए हो, जो मौत को खुद खौफजदा करते हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये सब बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसलिए हैं कि वो हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। एक दफ़ा अब तुमने कोशिश कर ली है, अब हमारे जवाब का इंतज़ार करो। जी बिल्कुल, मिटा देंगे दुश्मन तेरे नामो निशान को, अगर तूने देखा मैली आंख से पाकिस्तान को। रियाज, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी आवाम आपके साथ मौजूद दिखाई दे रही है। अभी आपने कुछ देर पहले एक शहरी से भी बात की, वो ये बता रहे थे कि हम यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ की आवाम को सपोर्ट करने और पाकिस्तान के दिफा के लिए दूसरे इलाकों से आए। जी बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर, बल्कि गुजरांवाला से भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, लाहौर से भी आए थे। लाहौर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और गुजरांवाला भी तकरीबन 40-45 किलोमीटर, यहाँ इतने 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी वो आए हुए थे। ये बंदा जो है वो मुझे बता रहा है कि मैं हाफिजाबाद से आया हूँ, और ये अपने बच्चे को हाफिजाबाद से लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं? हाफिजाबाद है, मल्ला कस्सो के बाईपास, और मलासन टाउन जो है ये हमारा है, और वहाँ से हम आए हैं। और ये सिर्फ भारत को ये बताने के लिए आए हैं। तुम टीवी पे बैठ के बोलते पाकिस्तान डर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी डर रही है। नहीं, पाकिस्तान आर्मी तो क्या, हमारे बच्चे भी नहीं डर रहे। ये देखो तुम्हारे सामने है, आओ हिम्मत करो। अब पहले तो तुमने कर लिया जो करना था, और इंशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज पे हमें पूरा यकीन है। और हमारी ये जो कौम है ये सारी पाक फ़ौज के साथ है। ये मत कहो कि नहीं ये कौम के साथ, कौम फ़ौज के साथ नहीं है। ये पूरी कौम जो है ना, ये अपनी पाक फ़ौज के साथ है। ये कुछ लोग, आप भाई मुझे बताइए कहाँ से आए हैं आप? मुल्तान कोटा दूर से। तो यहाँ मुल्तान कोटा से आप आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, अफवाज पाकिस्तान का साथ देने के लिए आया हूँ। जो इन बुज़दिलों ने हमला किया है एक शहर पर, बजाय दीगर फ़ौज पर या दीगर इदारे पर, बल्कि इन्होंने एक छोटे से गांव पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम भागने वाले नहीं, हम भगाने वाले हैं। हम डरने वाले नहीं, हम डराने वाले हैं। हम बुज़दिल नहीं, बल्कि हम उनके दिलों में अपना खौफ पैदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपने अफवाज के साथ, मुल्क पाकिस्तान की सियासत के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। जब तक हमारे
जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है। इंशाल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हम तैयार हैं। इम्तियाज, आप बताइएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं, हौसले कितने पुरअज़्म देख रहे हैं आवाम के? इस वक्त आप देख रहे हैं कि दारुल हुकूमत मुज़फ्फरा जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर मालूमात भी हासिल कर रहे हैं और ज़िंदगी जो है वो रवां दुआ है, कारोबार ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह जारी है। यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ पर ये आज अटैक हुआ है यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जमा है और ये बताया जा रहा है कि जो बुज़ुर्ग यहाँ पर शहीद हुए उनकी आज दिन के वक्त नमाज जनाजा यहाँ पर जो है वो अदा की जाएगी। लोगों का मोराल जो है वो बुलंद है और लोग ये कह रहे हैं कि जो पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की और भारत का नुकसान किया, इस पर लोग जो है वो खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं और लोगों के हौसले जो है वो बुलंद हैं। जी ठीक है, इम्तियाज साथ मौजूद रहिएगा। खबर है भारत का बुज़दिलाना हमले के बाद पाक फौज का भरपूर जवाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद भारतीय पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की मौत से जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। बटल सेक्टर में दुश्मन के धर्मस्थल 1 और 2 पोस्टें तबाह की गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नेजा पीर सेक्टर में भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। दुश्मन की पोस्टों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि भारतीय जारहत का पाक फौज उसी की जबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने बिलाखिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त भी तस्लीम की। भारत के रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में भारत के 5 तैयारे मार गिराए और भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में यह भी बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए हैं, जबकि पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज हैं। ये खबर भी सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क का भरपूर दिफा किया है। पाक फौज जिंदाबाद। भारत का बुज़दिलाना हमले के बाद पाक फौज का भरपूर जवाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद भारतीय पोस्टें तबाह कर दी। बिल्कुल, कराची से हमारे साथ मौजूद है कैसर अब्बास, रियाज भी हमारे साथ मौजूद है। मुरीदके से बात करते हैं कैसर अब्बास से। कैसर ये बताएगा कि भारत की जानिब से एक नाकाम कोशिश की गई, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, मामूलात जिंदगी कैसे चल रहे हैं और कितने पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं अवाम? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो रात गए बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, ख़ास तौर पे कराची की हम बात करें तो कि आवाम जो है वो जज्बात से सरशार नज़र आते हैं। इस वक्त हम कराची की नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करें तो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है। मामूल के मुताबिक लोग दफातर जाने का सिलसिला जारी है लोगों का और स्कूल्स भी मामूल के मुताबिक खुले हैं। इंटर के होने वाले नताइज भी मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। इसी हवाले से जब हमने लोगों से बात करी तो उनका यही कहना था कि हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और हम हमा वक्त पाक फ़ौज से लड़ने के लिए तैयार हैं और पाक फ़ौज का साथ देंगे हमेशा। जी कैसर हमारे साथ ही मौजूद रहिए।